Once again, good evening, everyone. Once again, good evening, everyone. Today, we starting the very new batches for UGC NET in Management, Commerce, and Economics and HRM. Please do join everyone. So, being start today's class. Once again, please join everyone. So, we can start today's class. Today's class will be the introductory classes for UGC NET in Management, Commerce, and HRM. So, we starting the unit that is all about the HRM की बात करेंगे और HRM में the very first topic which we are going to be discussed today, that is all about industrial relation. Before, please do join everyone so we can start today's class. We are starting the class within our 2 minutes. Please join everyone so we can start today's class. Yes. So once again, good evening, everyone. Today is we starting the new batches for UGC NET in Management, Commerce and Economics in HRM. आज पहला क्लासेस हम लोग ले रहे हैं. आपको क्लियर बता दे रहे हैं कि आज पेपर यूजीसी नेट का 2023 का नोटिफिकेशंस मार्केट में आ चुका है. पेपर विल बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ लेट फरवरी और इन द मंथ ऑफ मार्च. तो स्टिल वी हैव मोर देन द 2 months. We'll try to complete out the whole syllabus of UGC NET in Management, Commerce and Economics and HRM. There will be a different batches for different all these 4 streams. तो अभी हम लोग विल ट्राई टू पिक आउट द दोस टॉपिक्स फॉर दीज 4 स्ट्रीम विच इज वेरी कॉमन एंड जो सारों में आएंगे. मैनेजमेंट में भी है, कॉमर्स में भी है और एचआरएम में भी हैं. So all those people who are appearing in a UGC NET in a code number 55 कोड से जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए भी इंडस्ट्रियल रिलेशन एक 5th यूनिट है. All those people who just want to be apply for UGC NET in management with the management and commerce, उसके लिए भी this is again one of the important topic for UGC NET in UGC NET in commerce and management. The very first topic I am just starting, that is all about industrial relations. So before starting with the core topic, what is all about the industrial relations, you just need to be understand what is all about the IR. So if we are talking about the meaning and concept of meaning and concept of industrial relations comprises of two terms, industry and relations. Okay, so what is industry, what is relations? You just need to be understand what is all about the industry.
कई बार हमने पहले भी क्लासेस में बता चुके हैं, और देयर आर एन नंबर ऑफ द वीडियो हैव बीन अपलोडेड ऑन द यूट्यूब, व्हाट इज ऑल अबाउट इंडस्ट्री, व्हाट इज ऑल अबाउट द कंपनी. तो इंडस्ट्री रिफर्स टू द एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन विच एन इंडिविजुअल्स आर इंगेज, जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक जगह पर काम कर रहे हैं. तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं देखिए ना, एक आज के टाइम में whenever you just want to be become the brand in the market, whether it's as per perspective of the market or finance and HR, सारा का कहीं ना होलिस्टिक मार्केटिंग जो लोग कर रहे हैं, सारी सारी चीजों पे इक्वली फोकस कर रहे हैं. दे आर फोकसिंग ऑन HR पॉलिसी, दे आर फोकसिंग ऑन द फाइनेंस, दे आर फोकसिंग ऑन द मार्केटिंग, दे आर फोकसिंग ऑन द एडवर्टाइजिंग. कहीं तब जाकर कहीं ना कहीं दे आर एबल टू मेक द बिकम द ब्रांड. तो व्हाट इज, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन एक बहुत बड़ा एक पार्ट है. लास्ट 20 ईयर, लास्ट 30 ईयर वी हैव बीन सीन एन नंबर ऑफ द enterprises has been failed in the market just because of they couldn't make the very good industrial relations. So industry is all about all those people who are working together to achieve the common objectives of the industry, that is called industry. Relations, we mean relations is all about the relationship की बात कर रहे हैं. We mean the relationship that exists within the industry between the employer and workers. आजकल देखिए ना, भारत में पीपल आर क्रेजी अबाउट टू वर्क विद द टाटा, वर्क क्रेजी अबाउट टू वर्क विद द इंफोसिस, क्रेजी अबाउट टू वर्क विद द some other very good brand in the market, because कहीं ना कहीं those companies are ready to build up the very good relations with their employer. तो कहीं ना कहीं अगर आप जो लोग काम कर रहे हैं आपके यहाँ, उनको सही से ट्रीट करेंगे, आप समय पे सैलरी दे रहे हैं, समय पे इंक्रीमेंट्स कर रहे हैं, वर्क होता नहीं कि एक अच्छा रिलेशंस मेंटेन करके रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि कहीं ना कहीं एक प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, अगर एट द एंड ऑफ द डे अगर एम्प्लॉइज आर नॉट हैप्पी विद योर रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस, तो लॉन्ग टर्म में आप नहीं चल सकते. आज गूगल बिकेम द ब्रांड, फेसबुक बिकेम द ब्रांड और एप्पल बिकेम द ब्रांड, तो कहीं ना कहीं उसमें एक बहुत बड़ा रोल इंडस्ट्रियल रिलेशंस का भी है. So what is all about the term industrial relations? Explain the relationship between employees and management, which stem directly or indirectly from union-employer relationship. Clear? Industrial relations are the relationship between employees and the employers within the organizational setting. Whatever the organizational setting you have, we just need to build up the very good relations between the employees and the employers. The relations which arises at and out of the workplace generally include the relationship between individual workers, the relationship between workers and their employers, relationship between employers, the relationship employers and workers have with the organization formed to promote their respective interests, and the relationship between those organizations at all levels. So relationship between the top level to middle level to lower level to the workers, you just need to be create, you just need to be build up the very good relationship among all the levels of organizations. The term industrial relations has a broad as well as a narrow outlook. Originally, IR was broadly defined to include the relationships and interaction between employers and employee. अगर simple language में समझने की कोशिश करिए, what is all about the industrial relations. So सिंपल में कहीं ना कहीं द इंटरेक्शन बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज. There are certain definitions has been given by the many persons. The IR relations, also called as a labor management or employers relations. Employer-employees relations that are covered specifically under the collective bargaining or IR laws. We have a number of the industrial relations laws are running the market in the different economies and concerned with the system, whatever the systems, whatever the rules, whatever the procedures used by the unions and employers to determine the reward for the efforts and other conditions of employment. Now, what are the different parties to the IR? कौन-कौन सी parties होती हैं? Employees, employers, government, trade unions, employers associations, courts and tribunals. So there are certain parties which comes under the industrial relations. Employees होगा जो लोग काम कर रहे हैं, employers हो गए, all those people जो हो गए जो मालिक है. Government कौन हो गया?
देर आर सर्टेन ट्रेड यूनियंस, आपने कई बार देखा होगा ट्रेड यूनियन स्ट्राइक्स हो जाती हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, बड़ी बड़ी कंपनीज में, तो ट्रेड यूनियंस का कोई लीडर होगा। एम्प्लॉयर्स के इन मेनी ऑर्गेनाइजेशन, रेलवे की बात करिए आप, मेनली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में they sometimes they make certain associations of employees in court and tribunals. Now what are the objective of IR? No, इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्यों पढ़ने की कोशिश करते हैं? आपको हमने बताया कि कहीं ना कहीं आज के टाइम में एक IR बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि all those people who are working in your respective organizations, you just need to grade those employees, you just need to give the respect to those employees. कभी जब तब जाकर कहीं ना कहीं you will be able to create the good brand image in the market. प्रोडक्ट में बहुत दम है, यू आर सेलिंग द वेरी गुड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एट अ वेरी चीपर रेट, डिस्पाइट ऑफ दैट फैक्ट you might have faced certain failure situation in the long run. So कहीं ना कहीं आपको सारी चीजों का इक्वली ध्यान देना है। पहला हो गया ऑब्जेक्टिव्स में, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज ऑल अबाउट एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट, provide an opportunities to the workers to participate in a management and decision making process. You just आपको एक फील कराना है अपने एम्प्लॉयज को कि you are playing the equal role in a management team, you are playing the equal role in a decision making process. So you just need to provide an opportunities to the workers to participate in a management and decision making process. Productivity, to raise the productivity in the organizations, to curb the employees turnover and absenteeism. What actually you just need to do, आपको प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करना है ऑर्गेनाइजेशंस में। और सबसे बड़ा दिक्कत है इन लास्ट 10 year, last 15 year we have been seen especially in a few industries like education industry, IT industry, telecom industry, सबसे बड़ा दिक्कत है that is all about the attrition rate. Attrition rate बहुत हाई हो रहा है। What is all about the attrition rate? एट्रिशन रेट, एक तो रिटेंशन होता है, रिटेंशन क्या होता है, कितने लोगों ने ज्वाइन किया, कितने लोग रिटेन कर रहे हैं। इफ सपोज दैट, और जितने लोग छोड़ के जा रहे हैं, सपोज दैट 10 people have been joined at 1st of January, 2 महीना बाद, 3 महीने बाद 10 में से 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग छोड़ के चले गए, तो 60% इज द एट्रिशन रेट। जितना ज्यादा हाई एट्रिशन रेट होगा उतना आपके लिए नुकसान है, क्योंकि नया एम्प्लॉइज आएगा, आपको हायरिंग की कॉस्टिंग इन्वॉल्वमेंट होगा, अगेन इट विल बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा खर्चा, बहुत बड़ा एक्सपेंसेस होता है। इन सेम टाइम एक ब्रांड में भी इंपैक्ट पड़ता है कि बहुत जल्दी जल्दी लोग नौकरी आपके यहाँ से जा रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी भी कभी भी इंप्रूव नहीं हो पाएगी। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईआर में सेकंड इज ऑब्जेक्टिव ऑफ आईआर इज ऑल अबाउट प्रोडक्टिविटी. If you just want to be increase the productivity of your respective organizations, so you just need to be make the very good IR. Third is all about the bargaining capacities. What is all about the bargaining capacities? To improve the bargaining capacities of the workers through the trade unions. आगे हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे, एक टॉपिक होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग कई सारे टाइप्स की होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग हो गई, कंजक्टिव बार्गेनिंग हो गई, पार्टिसिपेटिव बार्गेनिंग हो गई, तो बढ़ाया जाएगा आपको। दे शुड हैव सर्टेन बार्गेनिंग कैपेसिटीज, तो यू जस्ट नीड टू बी, क्योंकि कहीं ना कहीं सपोज दैट देयर इज सर्टेन डिससैटिस्फैक्शन अमंग ऑल द एम्प्लॉइज, जो लोग भी आप यहाँ काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उन लोगों को डिससैटिस्फैक्शन है। उन डिससैटिस्फैक्शन को दूर कैसे करेंगे? दूर करने के लिए एक यही है कि आप उनसे बात करिए। they'll try to bargain certain thing, you just need to bargain certain thing. तो कहीं ना कहीं एक ओपन विंडो होना चाहिए। There should have been certain bargaining capacity with the employees whenever they just want to be bargain for the feasible thing. Unfeasible thing के लिए bargaining नहीं करेंगे आप, but अगर सही में there are certain problems within the any organizations and most of the employees, most of the workers, they are demanding few things. You just need to be understand those concept, understand those things, और कहीं ना कहीं आपको बार्गेन करना पड़ेगा, और एक ऐसा बार्गेन करेंगे जिसमें आप भी कहीं ना कहीं आपको भी लॉस ना हो, इन सेम टाइम वर्कर्स आल्सो गेट सेटिस्फाइड. Fourth objective of IR is all about the discipline, to ensure the discipline in the organization and in the industry. So these are the four basic objectives of the IR: employee empowerment, productivity, bargaining capacity, and discipline. In the same time, labor management interest,
to safeguard the interest of the labor and the management by preventing one of the players from getting a strong hold over the other. Simple है. Mutual cooperation among the between the mutual cooperation between the employees and employers to develop and secure the mutual understanding and good relationship among all the players in the industry setup. All those people who are working in industry setup, you just need to be make the very good relationship among all the players. Next is resolve and preventing the industrial conflict. Whatever the industrial conflict you are having, you just need to maintain those industrial peace and harmony by preventing the industrial conflict. You just need to be try to minimize those conflict, because conflict जितना ज़्यादा होगा वो कहीं ना कहीं at the end of the day it will be impact on the productivity. Next is economic conditions. What is all about the economic conditions? You just need to be improve the economic condition of the workers. In a meanwhile, in a yearly basis, you just need to be increase the salary also. Performance appraisal करेंगे आप, salary increase करेंगे, bonus provide करेंगे. Certain pay commissions also there in a many companies. So being in a malik or being an owner of any organizations, you just need to be understand as per the employees perspective, you have to be improve the economic condition of the workers, standard of the living, to improve the standard of the livings of the average workers by providing basic and standard amenities. आजकल देखिए बेसिक बहुत सारे लोग ट्रांसपोर्टेशन की बात करिए, कैंटीन्स का बात करिए, मील्स का बात करिए, स्कूल्स की बच्चों की स्कूलिंग का बात करिए, कहीं ना कहीं बहुत सारी कंपनीज apart from salary they are providing n number of the benefits to their employees to improve the standard of the living of their respective employees. And next is basic framework to provide a basic framework for the management and employees to resolve those differences. Now this is again one of the most important topic. 100% यहाँ से क्वेश्चन आता है. वो तो देखो बेसिक था, आपको बताना था कि क्या होता है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस, बट क्वेश्चन यहीं से आता है. 100% क्वेश्चन आएगा, प्लीज नोट कर लीजिए यहाँ पे, जहां पर बताया जाएगा कि दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो आईआर के अंदर अप्रोचेस से यूनिटरी की बात करिए, प्लुरलिस्टिक की बात करिए, मार्क्स की बात करिए और सिस्टम अप्रोचेस की बात करिए, तो इन अप्रोचेस से क्वेश्चंस आता है. तो ये अप्रोचेस क्या है आगे, अभी इस फोटो से आपको समझ में आ रहा होगा. अभी आईआर में समझ में आया कि व्हाट इज ऑल अबाउट द इंडस्ट्रियल रिलेशंस. एनीवन इज हैविंग एनी डाउट प्लीज डू टेल मी. ये पहले ये बताओ, आईआर समझ में आया कि आईआर क्यों पढ़ते हैं, आईआर का ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? चलो आगे, व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ आईआर. हमने आपको बताया यूनिटरी हो गई, प्लुरलिस्टिक अप्रोच हो गई, मार्क्स की बात करिए या सिस्टम अप्रोच की बात करिए. इन सारी अप्रोचेस को हम लोग एक एक करके डिफाइन करेंगे कि क्या मतलब है. यूनिटरी भाई आपकी उसकी बात कर रहा है, मार्क्स वाले इवोल्यूशंस और रिवोल्यूशंस की बात कर रहे हैं, ये लोग पैटर्निज्म्स की बात कर रहे हैं और अथॉरिटेरियन की बात कर रहे हैं. प्लुरलिस्टिक इज ऑल अबाउट द कॉपरेशन अमॉन्ग द एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स की हम लोग बात करते हैं. और कहीं ना कहीं सिस्टम अप्रोच इज ऑल अबाउट द सोशल एक्शन की बात करते हैं. अभी पूरा डिटेल में आपको अलग अलग चारों एक एक करके समझाएंगे. पहले समझिए व्हाट इज ऑल अबाउट द यूनिटरी अप्रोच. ये बहुत ट्रेडिशनल अप्रोच है. आईआर इज ग्राउंडेड इन द म्यूचुअल कॉपरेशन, इंडिविजुअल ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड द शेयर्ड गोल्स. Union cooperate with the management and their management right to manage is accepted because there is no they
दे कंसीडर योर फीलिंग एक्चुअली। एजम्पशंस क्या होते हैं? कॉमन इंटरेस्ट इन द प्रमोशंस ऑफ हार्मोनी की बात करते हैं, कॉमन इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर्स। नो स्ट्राइक्स आर देयर, जो लोग भी जिन जिन ऑर्गेनाइजेशंस में यूनिटरी अप्रोच फॉलो करी जाती है, स्ट्राइक्स नहीं होती। इट्स ए रिएक्टिव आईआर स्ट्रेटजी होती है, जैसे कुछ प्रॉब्लम होती है उस पर रिएक्ट करते हैं, इसी के चक्कर में स्ट्राइक्स नहीं होती है। कॉमन इंटरेस्ट पे काम कर रहा है, प्रमोशंस ऑफ हार्मोनी पे काम कर रहा है। They seek direct negotiations with the employees whenever the employees are facing any problems। कहीं ना कहीं जो मालिक है ऑर्गेनाइजेशंस में, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, डायरेक्टली दे आर नेगोशिएटिंग विद देयर एम्प्लॉइज। तो सीधी सी बात है, समय के साथ whenever the employees are facing any problems, you are directly coordinating with your employees, you are talking with employees, you are negotiating with the employees, so automatically there is a chances of strikes will be very minimum। तो IR इज जो यूनिटरी अप्रोच इज ऑल अबाउट द म्यूचुअल कॉपरेशंस की बात कर रहे हैं। बस ये जो 4-5 पॉइंट है जम्सन्स वही नोट करिए। सब्जेक्टिव पेपर नहीं देना बच्चों आप लोगों को, यू जस्ट नीड टू गिव द ऑब्जेक्टिव पेपर। तो यूनिटरी अप्रोच इज ऑल अबाउट द नो स्ट्राइक्स आर देयर, इट्स अ रिएक्टिव IR स्ट्रेटजी, दे सीक द डायरेक्ट नेगोशिएशन विद द एम्प्लॉइज। प्लूरलिस्टिक अप्रोच इज ऑल अबाउट what they perceives organizations as a coalition of competing interests, trade union as a legitimate representative of the employees' interests, stability in IR as a product of concession and the compromise between the management and unions. Conflict between the management and workers is understood as inevitable. Conflict is viewed as a conducive for innovations and growth. The strong union is necessary। तो कहीं ना कहीं देखिए यूनिटरी अप्रोच में हम लोग क्या करते थे, डायरेक्टली मालिक लोग हैं या ऑर्गेनाइजेशंस में जो टॉप लेवल मैनेजमेंट, दे आर डायरेक्टली टॉकिंग विद द एम्प्लॉइज एंड दे आर नेगोशिएटिंग विद द थिंग्स, इसीलिए कहीं ना कहीं स्ट्राइक नहीं हो रही। और दोनों लोग कहीं कॉमन इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं, कॉमन हार्मोनी पे काम कर रहे हैं, म्यूचुअल कॉपरेशन पे काम करते हैं। But in the same time, whenever we are talking about the pluralistic approach of industrial relations, तो organization is a coalition of competing interest, आपस में दो इंटरेस्ट कॉम्पीट करने की बात कर रहे हैं। ट्रेड यूनियन इज ए लेजिटिमेटिव रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द एम्प्लॉइज इंटरेस्ट, डायरेक्टली एम्प्लॉइज मालिक को नहीं बता रहा, टॉप लेवल को नहीं बता रहा। और जो एक उन्होंने ट्रेड यूनियन जो बना के रखे हैं, ट्रेड यूनियन का कोई नेता होगा, एक लीडर होगा, तो वट एवर द डिस्प्यूट्स आर हैपनिंग विद द एम्प्लॉइज, they are telling their dispute to the trade union peoples, and then trade union peoples are negotiating those problems, those interests with the top level management। Clear? तो यहाँ पर trade union is playing the role of mediator between the employees and the top level management। So stability in IR as a product of concessions and the compromises between the management and union। से हमने आपको बताया दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक रोल प्ले कर रहा है। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स इज अंडरस्टूड एज द इनएविटेबल। ऑब्वियसली बात है कि कॉन्फ्लिक्ट हो गई होगा। कॉन्फ्लिक्ट इज व्यूड एज ए कंड्यूसिव फॉर इनोवेशंस एंड ग्रोथ। कॉन्फ्लिक्ट को ऐसे देखा जा रहा है कहीं ना कहीं इससे इनोवेशन होगा, कुछ नया चीज आएगा, कुछ नया लर्निंग्स होंगी, उसमें नई ग्रोथ होगी। एंड स्ट्रॉन्ग यूनियन इज नेसेसरी। अगर ट्रेड यूनियन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्लूरलिस्टिक अप्रोच आप फॉलो नहीं कर सकते। Third है Marxist approach regards conflict as a pluralist। Marxist sees the conflict as a product of the capitalist society। ठीक है, तो मार्क्सिस्ट कैसे कॉन्फ्लिक्ट को क्या देखते हैं? मार्क्सिस्ट सीज द कॉन्फ्लिक्ट एज अ प्रोडक्ट ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कहीं ना कहीं ऐसी दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस ड्यू टू द डिवीजन ऑफ द सोसाइटी between those who own the resources and those who have only labor to the offer। कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं सोसाइटी के बीच में डिवाइड करके रखा हुआ है। मार्क्स वाले लोग ये कहते हैं कि कुछ लोगों के पास संसाधन है, कुछ लोग उन संसाधनों को काम करके आगे रिसोर्सेज बना रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली कहने का मतलब है कि देयर विल बी ए कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज कुछ अमीर है, कुछ गरीब है, कुछ मालिक है, कुछ वर्कर है, तो ऑटोमेटिकली चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विल बी वेरी मच हाई। फॉर द मार्क्सिस्ट all the strikes are the political, they don't think like that कि लोग अपने what we call rights के लिए स्ट्राइक कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए स्ट्राइक कर रहे हैं। बट मार्क्स वाले जो लोग होते हैं, मार्क्सिस्ट अप्रोच ऑफ IR इज सेइंग लाइक दैट कि जितनी भी स्ट्राइक्स होती हैं दैट इज ऑल अबाउट द पॉलिटिकल फैक्टर, क्योंकि कहीं ना कहीं इट हैज इन्फ्लुएंस बाय द पॉलिटिकल
figure, political leaders, or political thing in political interest. तो कहीं ना कहीं Marxist is all about what they do. What they do call whatever the strike is happening between the management and the employees, that is totally political in the nature, politically in the nature. They regard state interventions by legislations and the creation of industrial tribunals as supporting management interest rather than ensuring a balance between the competing group. So what actually they do, ये कहीं ना कहीं एक इंटरवेंशन की बात करते हैं तो स्टेट लेजिस्लेशन होता है कि भारत कंट्रीज लाइक इंडिया जहाँ पे एक स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, व्हाट द मार्क्सिस्ट अप्रोच सेज कि दे इंटरवेंस बाय द लेजिस्लेशंस कानून, स्टेट की बात कर रहे हैं, बाय द लेजिस्लेशंस द क्रिएशन ऑफ द industrial tribunals as supporting management interest rather than ensuring a balance between the competing groups. Next हो गया system approach. The system approach was developed by the Dunlop of Harvard University in 1958. Most of the organizations में लोग आजकल system approach ही follow करते हैं. So according to this approach, individuals are a part of an ongoing but independent social system. इन लोगों को लगता है कि जो लोग काम कर रहे हैं, they are the part of the organizations, but कहीं ना कहीं in the same time, they are having their own choice, they are having their own perception, they are having their own idea of thoughts. तो सोचने का तरीका, सोचने का नजरिया, एटीट्यूड, पर्सनालिटी, परसेप्शन सबका अपना अपना है. तो इसीलिए कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, सिस्टम अप्रोच में यही कहा जाता है, डोनलॉप ने यही बोला था कि every individual is all about the independent social system of the organizations. The behavior, actions, and the role of individuals are shaped by the cultures of the society. Clear? The three elements of the system approach are input, process, and output. What actually you are putting and how actually you are processing, and what are the outcomes. That is called output. Society provide the signals to the individuals about how one should act in the situation. कहीं ना कहीं आज भी हम लोग देखते हैं कि सोसाइटी के अकॉर्डिंगली हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं कि everyone is personality depend on the society where they do actually belongs. कहाँ से आप हैं, what are the आपकी upbringings कैसी हुई, कहीं ना कहीं it's matters a lot. सोसाइटी एक सिग्नल प्रोवाइड करती है कि आपको किस सिचुएशंस में, किस सर्कमस्टेंसेस में किस तरीके से रिएक्ट करना है. फर्दर अगर सिस्टम अप्रोच की बात करेंगे, द इंस्टीट्यूशंस, द वैल्यू सिस्टम एंड द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोसाइटी influence the process and determine the outcomes or response of the individuals. The basis of this theory is that group causiveness is provided by the common ideology shaped by the societal factor. सिंपल डनलप की सिस्टम अप्रोच. इस सिस्टम अप्रोच को हम लोग इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हैं? बिकॉज इट इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच ऑफ आईआर. तो व्हाट आर द इनपुट्स? इनपुट्स इज ऑल अबाउट एक्टर, एम्प्लॉयज, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, कॉन्टेक्स्ट, टेक्नोलॉजी, मार्केट एंड पावर आइडियोलॉजी. प्रोसेस कैसे होता है? बार्गेनिंग कर लिया आपने, लेजिस्लेशंस कर लिया, आर्बिट्रेशंस कर लिया, कॉन्सिलेशंस कर लिया, बार्गेनिंग कर लिया, सब बारे में अपने अपने टॉपिक है, सारे को पढ़ाएंगे. कॉन्सिलेशंस क्या होता है, आउटपुट क्या निकलेगा, रूल्स, कानून, प्रोसीडर्स. देन फाइनली यू जस्ट नीड टू गिव द सर्टेन फीडबैक्स. नाउ समझ के चारों अप्रोच? एनी डाउट? इंट्रा इंडस्ट्रीज की बात करेंगे इसमें हम लोग, इंटर इंडस्ट्रीज की बात नहीं करेंगे.
एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात कर रहे हैं हम लोग, विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल प्रीमाइसेस की बात कर रहे हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द आईआर? कौन कौन से फैक्टर्स है? पहला हो गया इंडस्ट्रियल फैक्टर्स। This includes items like state policies of government, labor laws, whatever the prevailing laws are running in the market, voluntary codes, collective bargaining agreement, whatever the collective bargaining agreement you have done so far, what are certain labor unions are running in the market, and employee organizations. Next बात करेंगे इकोनॉमिक फैक्टर्स इज ऑल अबाउट दिस इंक्लूड्स इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, ओनरशिप कौन है, किसके पास है, हु इज द ओनर, इंडिविजुअल्स, कंपनी विद डोमेस्टिक और एमएनसीज, डोमेस्टिक के अलग क्लॉज होंगे, एमएनसीज के अलग क्लॉज होंगे, गवर्नमेंट किसकी है, व्हाट आर द गवर्नमेंट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, सर्टेन कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ओनरशिप, नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ वर्कफोर्स, किस तरीके के लोग हैं, अगर बहुत वैरायटी ऑफ पीपल्स आर वर्किंग, अगर कोई एमएनसी है, सपोज दैट गूगल की बात करेंगे, गूगल हेडक्वार्टर्स में फ्रॉम द मोर देन 100 कंट्रीज के लोग कहीं ना कहीं दे आर वर्किंग एट ए गूगल हेडक्वार्टर, तो ऑटोमेटिकली कंपोजिशन ऑफ द वर्कफोर्स, नेचर ऑफ द वर्कफोर्स आल्सो इंपैक्ट्स ऑन द आईआर। तो जितने ज्यादा अलग अलग जगह के लोग होंगे, अलग अलग रीजन्स के होंगे, अलग अलग कंट्रीज के होंगे, तो ऑटोमेटिकली चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विल बी वेरी मच हाई। The sources of labor supply, labor market relative status, disparities of the wages between the groups. अगर सैलरीज में बहुत अप एंड डाउन है, किसी को 20,000 मिल रहा है, किसी को 2 लाख मिल रहा है, if the disparities बहुत ज्यादा है सैलरी और वेजेस में, तो ऑटोमेटिकली चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विल बी वेरी मच हाई। लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द मार्केट, अगर बेरोजगारी बहुत ज्यादा होगी तो आईआर नहीं होगा, तो मजबूरी में लोग नौकरी करेंगे, बट कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट रेट मार्केट में नहीं है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, जॉब्स की डिमांड उतनी नहीं, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आप चीजें बार्गेन करेंगे, आप नेगोशिएशंस की पोजीशंस पे होंगे। एट द सेम टाइम मार्केट में रिसेशन चल रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, तो ऑटोमेटिकली व्हाट एक्चुअली यू जस्ट नीड टू डू, यू हैव टू बी कंप्रोमाइज विद द मेनी थिंग्स। इंडिया में इसीलिए कहीं ना कहीं हाँ बहुत सारे लोग एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा है, क्यों है स्पेसिफिकली इन प्राइवेट सेक्टर्स, मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है बट सप्लाई ऑफ जॉब्स उतनी नहीं है, तो एट द एंड ऑफ द डे वी जस्ट नीड टू बी कंप्रोमाइज विद द सैलरी आल्सो। थर्ड इज सोशल फैक्टर्स लाइक सोशल ग्रुप्स, कास्ट सिस्टम, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, create social values, certain norms, social status influence IR in the early stage of industrialization. Technological factor, these includes methods, types of technology used, rate of technological changes. बहुत जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज होगी, कभी विंडोज 7 आया, पहले एक्सपी आया, फिर विस्टा आया, इट टुक अराउंड 20 years आने में कहीं, बट हर 2 महीने या 3 महीने में आप सॉफ्टवेयर चेंज कर दे रहे, टेक्नोलॉजी चेंज कर रहे, तो ऑटोमेटिकली तो उसके अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग्स नहीं देंगे आप, तो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी तो कहीं आपकी सैलरी काटी जा रही है या आपको इंक्रीमेंट्स नहीं हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आदमी को ग्रीवेंसेस होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। So what are the types of technologies you are using within your organizational premises, and what are the rate of technological changes? It's frequently, rarely, oftenly, year में change हो रहा है, 5 साल में एक बार change हो रहा है, 10 साल में एक बार change हो रहा है, again its impact. R&D activities, research and development कैसी हो रही है, ability to cope up with the emerging trends, whatever आजकल बात दुनिया में IoT, AI और ML की बात चल रहा है, तो all those people who are working in your respective organizations, whether they are having certain ability to cope up with the emerging trends or not. Okay, so these factors considerably influence the pattern of industrial relations. They are known to have direct influence on the employment status, wages level, and collective bargaining process. Then is psychological factors. Such factors includes item pertaining to the industrial relations like owner's attitudes, मालिक है उसका attitude अलग है, perception of the workforce, their attitudes towards work, कुछ लोग काम करने नहीं चाह रहे, their motivation level, their morale, their interest, their alienation, dissatisfaction, occupational stress, boredom, बोर हो गया, resulting from man machine interface. तो साइकोलॉजिकल में एटीट्यूड हो गया, मोटिवेशंस हो गया, लर्निंग हो गया, डिससेटिस्फैक्शन हो गया, ओनर्स का एटीट्यूड हो गया, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आईआर को अफेक्ट करते हैं। देन पॉलिटिकल फैक्टर, पॉलिटिकल इंटरवेंशंस की बात करेंगे, सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट की बात करेंगे, व्हाट आर द सर्टेन पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, एटीट्यूड ऑफ द डिफरेंट गवर्नमेंट्स,
ruling elite and opposition's leader towards labor problems affect the state of IR. तो ऑटोमेटिकली हमको पता है कि हाउ द पॉलिटिकल फैक्टर्स अफेक्ट द IR. जो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, डिफरेंसेस ऑफ IR बिटवीन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज. पीपीटी शेयर कर देंगे तो आप लोग देख लीजिएगा उसको. नो, व्हाट आर द सर्टेन डिफरेंट कॉजेज ऑफ पुअर IR. इससे एक बार क्वेश्चन आया भी है कि पुअर IR के इंडस्ट्रियल रिलेशंस के व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज आर अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट. तो पहला हो गया एन एटीट्यूड ऑफ कंटेम्प्ट टुवर्ड्स द वर्कर्स ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट. इनएडिक्वेट फिक्सन ऑफ वेजेस और इम्प्रॉपर वेजेस. कोई कानून नहीं है, किसी को 200 दे रहे हैं, किसी को 5000 दे रहे हैं. देयर शुड हैव certain guidelines for salary. There should have been certain guidelines for the wages. It should not be improper wages. Unhealthy working condition at the workplace. अगर आपने देखा होगा 2 फैक्टर होता है ना, जिसमें कुछ मोटिवेशनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ मेंटेनेंस फैक्टर होते हैं ना, जिसमें हाइजीन फैक्टर्स होते हैं. तो अनहेल्दी वर्किंग कंडीशंस आल्सो मिसलीड टू द पुअर IR. तो लोग काम करना पसंद नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाई रहेंगे वो लोग, नौकरी एट्रिशन रेट बहुत ज्यादा रहेगा, स्ट्राइक्स बहुत ज्यादा होंगी. तो यू हैव टू बी प्रोवाइड द हेल्दी वर्किंग कंडीशंस टू योर एम्प्लॉइज. डिजायर ऑफ वर्कर्स फॉर हायर बोनस, वेजेस और डेली अलाउंसेस. आप 12% इंक्रीमेंट कर रहे हैं, बट ऑल दोस पीपल्स हु आर वर्किंग इन योर रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन दे आर डिमांडिंग वेरी हाई बोनस, हाई वेजेस or daily allowances. So again, it might lead to certain conflict. Desire of employees to pay as little as possible to his workers. इसका उल्टा क्या हुआ? मालिक तो यही चाहेगा हमेशा, ओनर तो हमेशा यही चाहता है कम से कम सैलरी का वेजेस लोगों को देना पड़े. Lack of human relations skills on the part of supervisors and the managers. Inadequate welfare facilities. वेलफेयर फैसिलिटीज बहुत ज्यादा नहीं है, सोशल सिक्योरिटीज में PF नहीं कट रहा है, ग्रेचुइटीज नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, कैंटीन्स नहीं है. तो इट माइट लीस्ट एन नंबर ऑफ द फैसिलिटीज जो आप प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो इनएडिक्वेट होंगी. तो अगेन इट वुड बी द कॉजेज ऑफ पुअर IR. डिस्प्यूट्स ऑन शेयरिंग द गेन्स ऑफ प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रहा है, एंड आपके जितना लोग भी है, ऑल दोस पीपल्स हु आर वर्किंग इन योर रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, दे आर वर्किंग with their full honesty. तो कहीं ना कहीं वो दिन रात काम कर रहे हैं. At the end of the day, suppose that 100 workers or 1000 workers they are working across the year. Across the year काम करने के बाद your productivity has got drastically increased as compared to the previous year. But despite of that fact, आप कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी में जितना प्रॉफिट हो रहा है उसमें आप अपने वर्कर्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं. तो प्रॉफिट भी अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वी शुड शेयर विद द एम्प्लॉयज आल्सो. अपने शेयर होल्डर के साथ डिविडेंड दीजिए, एम्प्लॉयज को सैलरी में दीजिए, बोनस दीजिए. समटाइम्स स्ट्राइक्स बाय द वर्कर्स और इंटर यूनियन राइवल्स आल्सो हो सकती है. So suppose that there are 4-5 trade unions are working in your organization, so it might have certain inter-union rivals also. Then general economic and political environment such as rising the prices, strikes by others. Market में inflation rate ज्यादा हो गया, in the same time आपके लेबर बोल रहे कि सैलरी बढ़ाइए, तो again it might causes of poor IR. Mental inertia on the part of the management. Now factors, next हो गया factor influencing the investment orientation. What are the management values? Attitudes toward risk, nature of the employees, availability of outsourcing और utilitarian. आप ये मैनेजमेंट वैल्यूज कौन कौन से हैं कि व्हाट आर द, देखिए टाटा है, व्हाई पीपल्स आर क्रेजी अबाउट टू वर्क विद द टाटा इन इंडिया, बिकॉज टाटा's core values are very much clear. Everyone knows कि टाटा डिस्पाइट ऑफ वी हैव बीन सीन 2 साल 3 साल कोरोना रहा ऑलमोस्ट, मोस्ट ऑफ द MNCs ने, बड़ी बड़ी कंपनी लोगों ने अपने एम्प्लॉइज को फायर कर दिया, हाफ सैलरी पे रखा, बट इन द सेम टाइम टाटा हैज नॉट कट द सिंगल penny of salary of their employees. So what are certain management values of respective organizations? You just need to be understand those management values. Accordingly कहीं ना कहीं आपको डिसीजन लेना होगा. Attitude towards risk, nature of the employee skills, availability of outsourcing. Now actors of IR कौन कौन मेन लोग होते हैं? एम्प्लॉइज, स्टेट गवर्नमेंट्स की बात कर रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी है, जो जिसका भी रोल है, वेदर इट्स स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स,
role or employees. They are the main actors of IR. Role of three extras to the IR. एम्प्लॉयज का क्या क्या रोल होता है आपको समझ में आ गया होगा. टू रिड्रेस द बार्गेनिंग एडवांटेज ऑन वन टू वन बेसिस. तो जितने भी लोग हैं, ऑल दोस पीपल्स हु आर वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन, दे आर ट्राइंग टू बार्गेनिंग द एडवांटेजेस ऑन वन टू वन बेसिस. सब लोग चाहते हैं कि कस्टमाइज के बेसिस पे, कस्टमाइजेशन के बेसिस पे बेनिफिट मिले. आपकी 5 रुपए सैलरी बढ़े, किसी की 10 रुपए, किसी की 50 रुपए. तो they try to take the advantage of bargaining on the one-to-one basis to secure the better terms and conditions for their members, to obtain the improved status for the workers in or her work, to increase the implementation of democratic way of decision making at a various levels. Employee चाहता है कि whatever the decision has been taken so far by the top level management, वो चाहते हैं कि आप एक डेमोक्रेटिक वे हो, डेमोक्रेटिक तरीके से whatever the policies you just want to be apply or implement in organizations, एक फीडबैक सारे लोगों का लिया जाए. एम्प्लॉयर्स का रोल क्या क्या होता है? क्रिएटिंग and sustaining the employee motivation, ensuring the commitment from the employees. वो लोग यही चाहते हैं कि employees कमिटमेंट करे, कमिटेड रहे काम के लिए. नेगोशिएटिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट विद द टीयू लीडर्स. वो जो ट्रेड यूनियन के लीडर्स हैं उनके साथ कहीं ना कहीं नेगोशिएट कर रहे हैं टर्म्स एंड कंडीशंस एम्प्लॉयमेंट की. एंड शेयरिंग द डिसीजन मेकिंग विद द एम्प्लॉयज. और वो स्टेट की बात करेंगे, गवर्नमेंट्स की बात करेंगे. लेबर पॉलिसीज, व्हाट आर द लेबर पॉलिसीज ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट, रिस्पेक्टिव कंट्री, रिस्पेक्टिव what are the prevailing labor laws are running in the market. Industrial tribunals, wages boards, different wages boards are running in the market. Industrial relations policies. So this is all about the IR. Now anyone is having any doubt, please do tell me. आज बहुत पहला टॉपिक था, इसीलिए कहीं ना कहीं बहुत छोटा सा टॉपिक हमने पिक किया. You just need to be focused on the what are those 4 approaches of IR. In the same time, what are the certain causes of poor IR in the organizations. Now किसी को डाउट तो प्लीज बताइए. I'll be sharing the timings for the different batches. For management and commerce, timing would be different. For economics, timing would be different. For HRM, timing would be different. अलग अलग टाइमिंग होगा, अलग अलग बैचेस का. हम लोग सारी टाइमिंग्स आपको बता दिया जाएगा. अलग अलग बैचेस के लिए अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना के हम आपको सारा का टाइमिंग्स बता देंगे. And whatever the PPT we are discussing here, we'll try to share those PPTs also. रोज का रोज आपको क्लास के बाद PPT मिल जाएगा. So once again, thank you so much for joining. Goodbye. Take care.